ٹھیک ہے، تو پریویس کلاس میں ہم نے جمپ اسٹیٹمنٹ وغیرہ کا کانسیپٹ دیکھ لیا تھا. آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ. اوپ کے کانسیپٹ وغیرہ دیکھنے جا رہے ہیں. تو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کا جو سب سے پہلا کانسیپٹ آپ کو ملتا ہے سیکھنے کے لیے وہ ملتا ہے کلاسز اور آبجیکٹس کا. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی سے باقی جتنی بھی چیزیں ہوں گی اسی سے ڈرائیو ہوں گی. جتنے بھی کانسیپٹ ہوتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے، ان کے پلرز وغیرہ، انہیریٹنس، ایبسٹریکشن، انکیپسولیشن اور پولیمورفزم وغیرہ، انہی سے ڈرائیو ہوں گے سارے. آبجیکٹ سے ریلیٹڈ، کلاس سے ریلیٹڈ، میتھڈ سے ریلیٹڈ، فنکشن سے ریلیٹڈ، یہ سارے کانسیپٹ انہی سے ہی ڈرائیو کیے جائیں گے جتنے بھی تمام کانسیپٹ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ میں ہوتے ہیں. تو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کلاسز کیا ہوتی ہیں اور آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں کلاسز سے پہلے آبجیکٹس کی بات کرتا ہوں تو آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے پروگرامنگ کو چھوڑ دیں تو ایک آبجیکٹ ہوتا کیا ہے. ایک ریئل ورلڈ میں آبجیکٹ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ آبجیکٹ کہلاتا ہے. تو فار ایگزامپل کوئی بھی آبجیکٹ، اب وہ فار ایگزامپل لیونگ تھنگ بھی ہو سکتا ہے اور نان لیونگ تھنگ بھی ہو سکتا ہے. مطلب کوئی بھی ایسی چیز اس یونیورس میں جو کہ فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے، مطلب کوئی نہ کوئی اسپیس آکوپائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہلاتا ہے آبجیکٹ. تو کوئی بھی آبجیکٹ کو اگر نان لیونگ کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی آبجیکٹ، فار ایگزامپل یہ ٹیبل ہے، ٹھیک ہے، ٹیبل ہو گیا، ماؤس ہو گیا، کی بورڈ ہو گیا، کوئی بھی آبجیکٹ کو بنانے سے پہلے اس کا سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ ڈیزائن اس کا بنایا جاتا ہے. اب وہ کوئی بھی پیپر پر بنایا آپ یا کوئی بھی سافٹ ویئر وغیرہ یوز کر کر بنائے. فار ایگزامپل اگر ایک گھر کی بات کرتے ہیں تو گھر کا کوئی بھی مجھے اسٹرکچر بنانے سے پہلے یا اس کا فار ایگزامپل کچھ بھی کنسٹرکشن وغیرہ کروانے سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا ایک بیسیکلی ڈیزائن بنانا پڑتا ہے. اس کو موک اپ بولا جاتا ہے. آپ موک اپ بولیں، پروٹوٹائپ بولیں یا سیمپل بولیں، اس کا ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ مطلب یہ جو گھر کی کنسٹرکشن ہوگی اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کس طرح کا ہوگا، اس میں کتنے رومز ہوں گے، کیسے سیپریٹ ہوں گے، بیلکنی کہاں پر ہوگی، کچن کہاں پر ہوگا، لانڈری کہاں پر ہوگی، پارکنگ کہاں پر ہوگی، انٹرنس کہاں پر ہوگی، گیٹ کہاں پر ہوگا، ٹیرس کہاں پر ہوگا. یہ ساری چیزیں کیا آ جاتی ہیں؟ ہمارے اسٹرکچر میں آ جاتی ہیں. تو کوئی بھی آبجیکٹ ہو اس کو بنانے سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا ایک کیا پڑنا، ڈیزائن بنانا پڑتا ہے، جس کو پروٹوٹائپ، جس کو اگر بہت ہی زیادہ آسان الفاظ میں سمجھو تو اس کو بلو پرنٹ بھی ایک بولا جاتا ہے. بلو پرنٹ، ٹھیک ہے. تو اگر فار ایگزامپل میں کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی بات کرتا ہوں، بحریہ ٹاؤن کی اگر بات کرتا ہوں، تو بحریہ ٹاؤن میں اگر آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہو کہ وہاں جو بلاک وائز گھر بنے ہوئے ہیں، مطلب بلاک اے ٹو زیڈ ہو گیا یا کوئی بھی سوسائٹی کا نام ہو گیا، وہ جو گھر کا اسٹرکچر ہوتا ہے ان کا سب کا سیم ہوتا ہے. اگر کوئی فار ایگزامپل کسی بھی سوسائٹی میں ایک گھر بنا ہوا ہے، اب اس میں ہوگا کیا کہ جتنے بھی اس لائن سے جتنے بھی گھر بنے ہوئے ہیں وہ سب سیم ہے، سارے سیم ہوتے ہیں. اگر کسی فلیٹ کی بات کرتا ہوں میں، کسی فلیٹ کی بات کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ فلیٹ میں اگر فار ایگزامپل ایک گھر کسی اور اسٹرکچر کا بنا ہوا ہے، دوسرا کسی اور ڈیزائن کا بنا ہوا ہے، تیسرا کسی اور کا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اگر کوئی بھی فار ایگزامپل کوئی فلیٹ ہے، کوئی یا ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے پروجیکٹ، اس میں سارے گھر کیا ہوتے ہیں، وہ فلیٹ کی بات کریں یا کسی گھر کی بات کریں، وہ سارا کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس اسٹرکچر اس کا سیم ہوتا ہے. انٹیریئر کی بھی بات کریں، ایکسٹیریئر کی بھی بات کریں، ٹھیک ہے. تو اسٹرکچر جو اس کا پراپر ہوتا ہے سیم ہو سکتا ہے. ڈفرنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا کلر وغیرہ اپنی مرضی سے اونر کروانا چاہے، کلر وغیرہ اس کو کس طرح کا چاہیے، وال پیپر چاہیے یا انٹیریئر وغیرہ کوئی تھوڑی بہت جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈیکوریشن کے طور پہ یوز کی جاتی ہیں وہ چینج کروا سکتا ہے. ورنہ ادروائز جو اس کا وہ ہوتا ہے انٹیریئر یا اسٹرکچر وغیرہ وہ سیم ہی رہتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک گھر میں انٹرنس کہیں اور ہے تو دوسرے میں کہیں اور ہوگی، پارکنگ کہیں اور ہے تو دوسرے گھر میں کوئی اور ہوگی، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل یہ سوال ہے میرا کہ جو گھر کا اسٹرکچر میں بنا رہا ہوں، مطلب ایکچوئل جو کنسٹرکشن میں کروا رہا ہوں اس گھر کی، وہ میں کسی نہ کسی بلو پرنٹ کو دیکھتے ہوئے بنا رہا ہوں، مطلب کسی نہ کسی سیمپل کو دیکھتے ہوئے بنا رہا ہوں گا کہ بھائی یہ سیمپل ہے، اس کے حساب سے میں اس کو ڈیزائن کروں گا، ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ جو فار ایگزامپل ایک لائن میں میرے پاس ہے، ایک بلاک میں مان لے کے 100 گھر ہیں، 100 گھر کی کنسٹرکشن مجھے کرنی ہے اور اسٹرکچر سب کا سیم ہے. تو کیا مجھے ہر گھر کو کنسٹرکٹ کرنے سے پہلے اس کا ہر ایک کا بلو پرنٹ الگ بنانا پڑے گا؟ میں ایک ہی بلو پرنٹ بنا دوں گا اور اس کو کیا کرتا رہوں گا، ہر ایک اس کے لیے یوز کرتا رہوں گا. تو آبجیکٹ اورینٹیڈ کانسیپٹ کا یہاں جو سب سے پہلا ایڈوانٹیج ہے، جو سب سے مین وجہ ہے، وہ ہے آپ کی کوڈ ری یوزیبلٹی. کہ آپ کا جو کوڈ ہے اس کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے کوڈ کر دیا اور اس کو بار بار یوز کروا سکتے ہیں، چاہے وہ آبجیکٹ کی صورت میں ہو، کلاس کی صورت میں ہو، یا ان کے میتھڈس کی صورت میں ہو، یا پراپرٹیز کی صورت میں ہو. پراپرٹی میں وہی ان کے ویریبلس وغیرہ کوئی بول رہا ہوں، اور کچھ اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. تو آبجیکٹ اورینٹیڈ سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ہمیں کوڈ ریوزیبلٹی کا ایک وہ پرووائڈ کرتا ہے ایڈوانٹیج، کہ ہم اس کو کوڈ کو ایک دفعہ کر دیں گے اور اس کو ہم بار بار یوز کر سکتے ہیں اپنے پروگرام میں جب ہمیں نیڈ ہوگی. ہمیں دوبارہ کوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی لاجک میں نے بنا کر رکھ دی، تو یہی مین ریزن ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرام کو یوز کرنے کا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ذرا
क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो क्लास सिंपल है, अगर प्रोग्रामिंग में क्लास की बात करें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल एक क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। सिर्फ एक मुझे क्या करता है, एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ मेथड्स या फंक्शन होते हैं। मेथड बोलूं या फंक्शन बोलूं बात देखिए, और प्रॉपर्टीज का मतलब वही है, सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं वो। जिस तरह से हम शीशा में वेरिएबल्स बनाते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, इंटीजर, फ्लोट, डबल या बूलियन वगैरह, वही सिर्फ प्रॉपर्टीज में उन्हीं को बोले जा रहा हूँ। तो हर क्लास में कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, और उन फंक्शंस या प्रॉपर्टीज को मुझे एक्सेस करने के लिए बनाना पड़ता है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट। तो जो प्रॉपर्टीज या जो कह लें कि एट्रीब्यूट्स, अगर मैं दोनों को एक साथ डिफाइन करूं, मेथड्स को और फंक्शंस को एक साथ डिफाइन करूं, तो एक वर्ड यूज किया जाएगा एट्रीब्यूट्स। तो जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैंने जो चीजें अपने घर के सैंपल में ऐड की हैं उसको कंस्ट्रक्शन कराने से पहले अपने डिजाइन में, और लाजमी सी बात है वही सारी चीजें मैं उसके एक्चुअल उसके बनाऊंगा भी उसके स्ट्रक्चर में। ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें जो सैंपल में मैंने एक रूम डिजाइन नहीं किया था, फॉर एग्जाम्पल 3 रूम थे, और मैं वहां पर आकर उसमें क्या करूँ, एक्चुअल कंस्ट्रक्ट में उसमें 4 रूम्स कर लूँ। या फॉर एग्जाम्पल मैंने उसमें टेरेस नहीं दिया होता, मैं एक्चुअल जो डिजाइन कर रहा हूँ उसका वो उसमें जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसमें मैं टेरेस भी दे दूँ। पार्किंग मैंने नहीं दी हुई थी और मैं वहां पर पार्किंग भी दे दूँ एक्चुअल उसको डिजाइन कर दे, तो ऐसा नहीं है। तो जो प्रॉपर्टीज उस ब्लू के पास है, जो जो चीजें मैंने अपने उसमें सैंपल में डिजाइन की हैं, वही एक्चुअल ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट होंगी उसको कंस्ट्रक्ट करते हुए। अब वो कोई भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कोई घर की मिसाल ले लें, आप गाड़ी की मिसाल ले लें, या किसी की और की भी चीज की मिसाल ले सकते हैं आप, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज क्लास के पास होंगी या जो मेथड या फंक्शन उस क्लास के पास होंगे जो मैं क्रिएट करूंगा, वही तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड उसके ऑब्जेक्ट के पास भी होंगे, ठीक है। ये लाजमी होगा, ठीक है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी जो मैंने क्लास में डिक्लेयर ना की हो और मैं उसके ऑब्जेक्ट में वही यहाँ पर यूज करूँ, या फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाए जो कि उस क्लास में एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट के पास आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वही सारी प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट के पास भी होंगी जो कि उस क्लास के पास होती है। बस उन प्रॉपर्टीज को, उन मेथड या फंक्शन को एक्सेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ताकि मैं उनकी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकूं और उनके मेथड वगैरह को यूज कर सकूं और उनको एक्सेस कर सकूं, ठीक है। वो बाद में देखें किस कब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और कब हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है एक घर की, यहाँ देखें एक मेरे पास घर का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। मान लेंगे ये एक मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है घर का। अब देखें यहाँ पर 2 घर बने हुए हैं, मतलब मैंने क्या किया, एक ही ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करते हुए, एक ही ब्लूप्रिंट को मतलब एक ही सैंपल को यूज करते हुए मैंने 2 घर वो कर दिए कंस्ट्रक्ट। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है घर में, सिर्फ कलर का। देखिए स्ट्रक्चर में दोनों के कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। विंडो की बात करें, डोर्स की बात करें, ठीक है, अगर उसकी फॉर एग्जाम्पल इसके टेरेस वगैरह की बात करें इसके, ठीक है, और ये चिमनी वगैरह की बात करें, तो देखें हमारे पास सब कुछ सेम है, बस फर्क क्या आ रहा है उसके कलर में, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से वेरी कर सकती हैं, जो प्रॉपर्टीज होंगी वो चेंज हो सकती है। अच्छा प्रॉपर्टीज नहीं, उनकी वैल्यूज जो है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर कर दी थी कलर की, अब एक घर का कलर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है पिंक, और दूसरे घर का कलर मैंने रखा हुआ है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ब्लू या ग्रीन, तो प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं वो तो वेरी कर सकती है लेकिन प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कार का फॉर एग्जाम्पल एक सैंपल डिजाइन किया हुआ है, एक कार का ब्लूप्रिंट मैंने रखा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल जो कार का ब्लूप्रिंट है उसको जब मैं एक्चुअल में कन्वर्ट करूंगा तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैंने अगर एक उसमें डोर्स रखे हुए हैं 2, तो लाजमी से बात नहीं है कि सब में 2 ही होंगे, किसी में 4 भी हो सकते हैं डोर्स, ठीक है, किसी में फॉर एग्जाम्पल इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर मैंने ट्रांसमिशन रखी है गियर ट्रांसमिशन, वो किसी गाड़ी में फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक भी हो सकती है, किसी गाड़ी में मैनुअल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेरी कर सकती हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं वो वेरी कर सकती हैं, ठीक है। तो इसको थ्योरेटिकल समझने से पहले इसके जरा प्रैक्टिकल पर आ जाते हैं कि किस तरह से हम एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम इसका सिंटैक्स देखें क्लास को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने सबसे पहले तो क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास का कीवर्ड लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, अपनी क्लास का नाम दे देना है। मैंने रख दिया क्लास का नाम माई क्लास, ठीक है। सी शार्प ये रिकमेंड करता है कि आप जो क्लासेस वगैरह का नाम रख रहे हैं उसका जो पहला लेटर है वो आपने कैपिटल रखना है, लेकिन अगर कैपिटल नहीं रखते तो इसमें हर्ज नहीं है। बताता हूँ कि रिकमेंड क्यों करता है सी शार्प, कि पहला जो लेटर है आपका कैपिटल होना चाहिए क्लास का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा के आप क्लास यहाँ पर डिफाइन कर दी। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने बनानी है वो तमाम प्रॉपर्टीज आप इसकी क्लास के अंदर रहते बनाएंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जितने भी मेथड्स हो सकते हैं या फंक्शंस हो सकते हैं, वो सारे आप क्या करेंगे, इन्हीं क्लास के जो ब्रैकेट्स हैं जो ब्लॉक्स हैं इन्हीं के अंदर रहते हुए बनाएंगे। अभी जो प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगाई हुई हैं, अब इन प्रॉपर्टीज को मुझे एक्सेस करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस माई क्लास का। और क्लास किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के क्या सिंटेक्स होता है, सिंपल, आपने सबसे पहले अपनी क्लास का नाम देना है, मैंने कहा माई क्लास एज इट इज नाम, उसके बाद स्पेस देके अपने ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम आपकी क्लास का नाम सेम हो सकता है, ठीक है। जब आप यहां पर जैसे ही
विजुअल स्टूडियो में अपने प्रोजेक्ट में अपनी क्लास का नाम लिखकर जैसी स्पेस देंगे तो आपको क्या सजेस्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट का नाम बिल्कुल सेम वही सजेस्ट करेगा जो आपकी क्लास का नाम है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि जो पहला लेटर है क्लास का वो कैपिटल है और ऑब्जेक्ट का सब कुछ क्या है, लोअर केस में। इसलिए सी शार्प ये रिकमेंड करता है कि अगर आप क्लास का नाम ऑब्जेक्ट के नाम से बिल्कुल सेम रखना चाह रहे हैं, मतलब अपने ऑब्जेक्ट का नाम और क्लास का नाम बिल्कुल सेम रखना चाह रहे हैं, तो आपकी जो क्लास का नाम है वो पहले लेटर से शुरू होना चाहिए, कैपिटल, ताकि आप थोड़ा सा उसको डिफरेंशिएट कर सके क्लास और ऑब्जेक्ट को। ठीक है, लेकिन आप इसके अलावा कोई भी नाम रख सकते हैं, एबीसी एक्स वाई जेड कुछ भी। मैंने यहाँ पर अगर नाम रख दिया ऑब्जेक्ट का माय ऑब्जेक्ट, माय ओबीजे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद आएगा एक कीवर्ड न्यू का, जो हमने एरे बनाते हुए भी यूज किया था, और उसके बाद दोबारा से आपकी क्लास का नाम, जो कि एक्चुअल में क्लास का नाम नहीं होता बल्कि आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। ठीक है, ये जो आपके पास न्यू के कीवर्ड के बाद आपको यहाँ पर एक नजर आ रहा है बिल्कुल सेम एज इट इज क्लास का नाम, ये क्लास नहीं है बल्कि कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो आपकी क्लास की प्रॉपर्टीज है, मतलब जो आपके क्लास के वेरिएबल्स और प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उनको इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज का मतलब कि उसमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को। और कंस्ट्रक्टर का नाम और आपकी क्लास का नाम बिल्कुल सेम होता है। और कंस्ट्रक्टर बिल्कुल एक स्पेशल टाइप का एक फंक्शन होता है, इसीलिए उसके नाम के आगे देखे पैरेंथेसिस लगाए हुए हैं। क्योंकि फंक्शन और मेथड के आगे नाम के आगे क्या लगता है, हमेशा पैरेंथेसिस लगते हैं, तो इसलिए कंस्ट्रक्टर के नाम के आगे भी पैरेंथेसिस लगाए जाते हैं, क्योंकि ये भी एक स्पेशल टाइप का एक फंक्शन ही होता है। तो क्लास इस तरह से बना सकते हैं आप लोग, क्लास का कीवर्ड, क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट में तमाम वो प्रॉपर्टीज और मेथड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे कि सबसे पहले क्लास का नाम, आपके ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू का कीवर्ड और आपके कंस्ट्रक्टर का नाम। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये आपकी क्लास का नाम नहीं है, आपके कंस्ट्रक्टर का नाम है। ठीक है, तो इसका एक जरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। और कंसोल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, प्रोजेक्ट टाइप और कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क को मैं सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगर करूंगा अपना प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ मैं यहाँ पर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सी शार्प क्लास का वो जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया था। क्रिएट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब सबसे पहले देखें, जब भी मैं कोई भी सी शार्प का प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ कंसोल एप्लीकेशन के लिए, तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक क्लास बनकर आती है प्रोग्राम की, और जिसके अंदर एक मेथड होता है मेरे पास मेन का। ठीक है, अब ये इंटरनल वगैरह क्या है इस पर आगे बात करेंगे। बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर होता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और इंटरनल। ठीक है, ये पूरा टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर का। ठीक है, फिलहाल इसको इग्नोर करें। ठीक है, सिर्फ क्लास के सिंटैक्स पर गौर करें। तो देखिए, सबसे पहले क्लास का कीवर्ड और उसके बाद क्लास का नाम है जो कि प्रोग्राम, और उसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड बनकर आया है, एक ही फंक्शन बनकर आया है बाय डिफॉल्ट, जिसका नाम है मेन। तो जब भी अपना प्रोजेक्ट हम रन करते हैं सी शार्प का, तो सबसे पहले आपका जो फंक्शन रन होता है वो मेन का फंक्शन आपका कॉल होता है। इसलिए जब भी जितने भी फंक्शन वगैरह बनाए जाते हैं, कॉल करवाए जाते हैं, वो हमेशा मेन के अंदर कॉल करवाए जाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर आकर एक क्लास बनानी है। ठीक है, तो क्लास के अंदर कभी भी आपने क्लास नहीं बनानी, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरे पास एक क्लास बनी है प्रोग्राम की, उस क्लास से मैं आऊंगा बाहर। ठीक है, मैं यहाँ पर उस क्लास से बाहर आया और मैंने यहाँ पर आकर एक अपनी मुझे क्लास बनानी है। तो सबसे पहले मैंने आकर क्या कर दिया, सबसे पहले क्लास बनानी, सबसे पहले क्लास का कीवर्ड, और उसके बाद मेरी क्लास का नाम आ जाएगा। मैंने क्लास का नाम रख दिया माय क्लास। ठीक है, उसके बाद कोई पैरेंथेसिस वगैरह नहीं लगाने, क्योंकि मेथड नहीं है, सिर्फ एक क्लास है। और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, तो ये मेरे पास बन चुकी है एक क्लास। अब मुझे डिसाइड करना है कि मेरे इस क्लास में प्रॉपर्टीज कितनी होंगी। तो मैंने कह दिया सबसे पहले तो मेरे पास जो क्लास है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी उसमें मैंने कह दिया वो होगी मेरे पास एक नेम की प्रॉपर्टी। तो मैं किस तरह से डिक्लेयर करूंगा उसको, मैंने सबसे पहले तो एक लगाऊंगा एक्सेस मॉडिफायर, मैंने कह दिया पब्लिक। ठीक है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का मतलब ये, पब्लिक से क्या समझ में आ रहा है कि ये मेरे पास पूरी एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल है। मैं इस एप्लीकेशन में कहीं पर भी, अभी जो मैं प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी को मैं कहीं पर भी एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास। ठीक है, किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी मेथड के अंदर। ठीक है, पब्लिक। उसके बाद आएगी डेटा टाइप, मैंने कह दिया स्ट्रिंग, कि इसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। और उसके बाद इस वेरिएबल का नाम, नाम मैंने वेरिएबल का रख दिया फॉर एग्जाम्पल एस नेम, मतलब स्टूडेंट नेम, और मैंने इसको कर दिया सिंपल यहाँ पर आकर इसको डिक्लेयर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी बनाने जा रहा हूँ, एक और प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दी, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक मैंने कह दिया स्ट्रिंग, या इसको ले लेता हूँ इंटीजर में, और इंटीजर में मैं ले लूंगा यहाँ पर एज। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज मैंने क्या कर दी हैं अपने इस क्लास में आके डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, अब इनको मैं साथ साथ इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ, मतलब मैंने यहाँ पर अगर क्या कर दिया, डिक्लेयर करने के साथ साथ मैं इनको इनिशियलाइज भी यहाँ पर कर सकता हूँ कि नेम मेरे पास हो गया यहाँ पर अली, और एज यहाँ पर मेरे पास हो चुकी है फॉर एग्जाम्पल 25।
ٹھیک ہے. اس طرح سے میں ویریبل کو ڈکلیئر بھی کر سکتا ہوں یا انیشلائز بھی کر سکتا ہوں اپنے کلاس میں جتنے بھی ویریبلس وغیرہ بنا رہا ہوں یا پراپرٹیز وغیرہ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر یہاں پر آپ لوگ انیشلائز نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کو ایک فنکشن میں بھی انیشلائز وغیرہ کروا سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. تو میں کام کرتا ہوں کہ دو پراپرٹیز جو میں نے صرف ابھی یہاں پر ڈکلیئر کی ہیں ان کو مجھے انیشلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک میتھڈ میں یا فنکشن میں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے, ایک میتھڈ بنانا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ابھی میتھڈ نہیں پڑھا لیکن ایک چھوٹا سا میں اس کا سینٹیکس بتا دیتا ہوں کس طرح سے میتھڈ بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آلریڈی ہم لوگ یہ پی ایچ پی میں اور جاوا اسکرپٹ میں فنکشن وغیرہ پڑھ چکے ہیں تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ ورک کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی میتھڈ یا کوئی بھی فنکشن. ٹھیک ہے. کوئی بھی یہاں پر اب بنانے کے لیے میتھڈ یا فنکشن بنانے کے لیے سی شارپ میں آپ کو سب سے پہلے لگانا پڑے گا ایکسس ماڈیفائر. ٹھیک ہے. وہی ایکسس ماڈیفائر ہے جو یہاں پر اوپر لگا ہوا ہے انٹرنل, اور یہاں پر میں نے لگایا پبلک. چار طرح کے ہوتے ہیں, پبلک, پرائیویٹ, پروٹیکٹڈ اور انٹرنل. ٹھیک ہے. پبلک میں نے یہاں پر اگر کہہ دیا میرا جو میتھڈ ہوگا وہ ہوگا پبلک. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے گی ریٹرن ٹائپ. یہ وہی ریٹرن کی بات کر رہا ہوں جو میں نے یہاں پر جمپ اسٹیٹمنٹ میں اسکپ کروایا تھا. ریٹرن جو تھا ایک جمپ اسٹیٹمنٹ, تو میں نے ریٹرن ٹائپ اب چاہے اسٹرنگ بھی لگا سکتے ہیں, انٹیجر بھی لگا سکتے ہیں, بولین بھی لگا سکتے ہیں, ڈبل بھی لگا سکتے ہیں اور وائڈ بھی لگا سکتے ہیں. یہ ساری ریٹرن ٹائپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس پر آگے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جو ریٹرن ٹائپ ہے, سب سے پہلے جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ میں یوز کروں گا وائڈ. وائڈ کی ریٹرن ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فنکشن یا میتھڈ کچھ بھی ریٹرن نہیں کرتا. یہ فنکشن یا میتھڈ کچھ بھی ریٹرن نہیں کرتا ہمیں. ٹھیک ہے. کچھ مطلب خالی ہے, کچھ بھی ریٹرن ہمیں نہیں کرتا. اب یہ چاہے انٹیجر بھی ہو سکتا ہے, ڈبل بھی ہو سکتا ہے, فلوٹ بھی ہو سکتا ہے, یا اسٹرنگ بھی ہو سکتا ہے, یا بولین بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ کے میتھڈ کا نام. میتھڈ کا نام میں نے کہہ دیا یہاں پہ فار ایگزامپل شو. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ میتھڈ کے نام کیا ہمیشہ کیا لگائے جاتے ہیں, پیرنتھیسس. اور پیرنتھیسس کے بعد اس میتھڈ کا ٹاسک کیا ہوگا یہاں میں ڈیسائیڈ کروں گا ان کرلی بریکٹس کے اندر کہ یہ جو میتھڈ ہے وہ اپنا کیا ٹاسک پرفارم کرے گا. اب کیونکہ میتھڈ یا فنکشن کوئی بھی اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کروانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل مجھے ایک ٹاسک کو اپنے پروگرام میں بار بار یوز کرنا ہے تو بجائے یہ کہ میں اس کا بار بار کوڈ لکھتا رہوں, میں اس کو کیا کر دوں گا ایک میتھڈ یا فنکشن میں رکھ دوں گا تاکہ جب بھی میں اس میتھڈ یا فنکشن کو کال کرواؤں تو میرا وہ ٹاسک پرفارم ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ بالکل اسی کی طرح ہے جیسے ہم نے ایس کیو ایل میں یا مائی ایس کیو ایل میں پڑھا تھا اسٹورڈ پروسیجر. اس میں کیا کرتا تھا میں کیوریز کو سیو کروا لیتا تھا, جب مجھے کیوری کی ایگزیکیوٹ کروانے کی ضرورت پڑتی تھی میں کیا کرتا تھا اس پوری کیوری کو ایگزیکیوٹ نہیں کرواتا تھا بلکہ کیا کرتا تھا اس اسٹورڈ پروسیجر کا میں نام کال کرواتا تھا تو میرے پاس وہ جو کیوری تھی ایگزیکیوٹ ہو کر آ جاتی تھی. اس کا خیر پورا بریف ایک ٹاپک ہے, ابھی ایک میں یہیں پر سے ایک چھوٹا سا میں بتا رہا ہوں یہاں پر اس کا ایک کانسیپٹ. تو سب سے پہلے مجھے کرنا کیا کہ میں نے ویریبلس تو ڈکلیئر کر دی اوپر, لیکن اب ان کو مجھے اندر اس کے انیشلائز کرنا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اوپر ویریبل جو ڈکلیئر ہوئے ہیں ان کو میں انیشلائز کروں ان میتھڈ کے اندر, اس میتھڈ کے اندر. اور انیشلائز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ویلیوز اسائن کرنا. ٹھیک ہے. جیسے ایک ویریبل ڈکلیریشن ہوتی ہے اور ایک انیشلائزیشن ہوتی ہے. تو یہاں پر میں نے آ کر دیا, میں نے کہا ایس نیم میں ویلیو اسٹور کروا دینا فار ایگزامپل علی, اور ایج میں نے کہا اسٹور کروا دینا اس کو 25. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی میں ایس ایج ہی کر لیتا ہوں, اسٹوڈنٹ ایج 25. اب میں نے یہاں پر یہ کیا کر دیا, انیشلائز تو کر دیا لیکن ابھی تک ان کو کنسول میں ڈسپلے کیا کروایا میں نے کہ کنسول ڈاٹ رائٹ لائن میں یہ ایس نیم اور ایس ایج کو ڈسپلے کروانا ہے. تو میں اسی فنکشن کے اندر آ کر کیا کرتا ہوں ان دونوں کو ڈسپلے بھی کروا دوں گا. میں نے کہا ایس نیم اور ایس ایج, تو ایس نیم اور ایس ایج میں جو بھی ویلیو اسٹور ہوگی وہ مجھے یہاں پر ڈسپلے کروا کے دے دے گا کنسول میں. ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے, اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس مین کے فنکشن کے اندر جو کہ بائی ڈیفالٹ بن کر آتا ہے اور وہی رن ہوتا ہے مین کا فنکشن صرف کنسول اپلیکیشن میں, اس مین کے فنکشن کے اندر مجھے کیا کرنا ہے یہ شو کا فنکشن کال کروانا ہے. ٹھیک ہے. اب فنکشن جو کال کرواتے کیا ہے صرف اس کا نام لکھ کر. ٹھیک ہے. صرف فنکشن کا نام لکھتے ہیں اور فنکشن کیا ہوتا ہے کال ہو جاتا ہے. لیکن اب کرنا کیا ہے کہ مجھے کیونکہ شو جام کا جو فنکشن ہے وہ اب اس مائی کلاس کا ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے. مائی کلاس کا ایک میتھڈ ہے شو. اب مجھے کرنا کیا ہے کہ اس کلاس کی پراپرٹی کو مجھے یہاں پر ایکسس کروانا ہے. تو کلاس کی پراپرٹی کو ایکسس کرنے کے لیے میں نے کیا بتایا کیا بنانا پڑے گا, میں آبجیکٹ. اب مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ بھائی مائی کلاس کا مجھے ایک آبجیکٹ بنانا پڑے گا, اس کے بغیر میں یہاں پہ ڈائریکٹ شو کو کال نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے. میں نہیں کروا سکتا ڈائریکٹ شوز کو. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے مجھے کرنا کیا ہے کہ اس کلاس کا مجھے ایک آبجیکٹ بنانا پڑے گا, اور کلاس کو آبجیکٹ بنانے کے لیے سمپل کیا, سب سے پہلے کلاس کا نام, آبجیکٹ کا نام, اسائنمنٹ آپریٹر, نیو کا کی ورڈ اور پھر کنسٹرکٹر کا نام. تو سب سے پہلے میں نے آ کر لکھا اپنی کلاس کا نام, میں نے کہہ دیا یہاں پر مائی کلاس. تو دیکھیں سجیشن میں میرے پاس آ گیا, دیکھیں مجھے پورا سینٹیکس وہ سجیسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں نے یہاں پر اگر ٹیب کی پریس کی اس نے کلاس لکھ دی. دوبارہ اب آبجیکٹ کا نام دینا ہے. آبجیکٹ کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ سجیسٹڈ نیم میں مجھے کیا بتا رہا ہے, مائی کلاس ہی بتا رہا ہے, لیکن دیکھیں دونوں میں ڈفرنس کیا بتا رہا ہے.
लोअर केस है टोटली वो, ठीक है। जो माई क्लास क्लास का नाम है उसमें देखिए एम जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल माई ऑब्जेक्ट, अपनी ऑब्जेक्ट का नाम रखा माई ऑब्जेक्ट, और इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद न्यू का कीवर्ड, और फिर आपके कंस्ट्रक्टर का नाम। तो इस तरीके से क्या कर लिया मैंने, इस जो माई क्लास का था वो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो क्लास क्या थी, एक ब्लूप्रिंट था और ऑब्जेक्ट उसका एक एक्चुअल में क्या था, ठीक है, एक स्ट्रक्चर कह लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अब आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले कि जो प्रॉपर्टीज और मेथड क्लास के होंगे पास, वही उसके ऑब्जेक्ट के पास भी होंगे। तो देखिए जैसे ही मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माई ओबीजे के नाम से, इससे हुआ क्या कि जो एस नेम, एस एज और ये जो शो का फंक्शन था वो क्या हो चुका है, इस माई ऑब्जेक्ट के पास जा चुका है। अब इस क्लास के पास भी है और इस ऑब्जेक्ट के पास भी है। तो अगर मुझे अब इसको एक्सेस करवाना है तो मुझे क्लास की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, उसको माई ओबीजे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके नाम से मैं इसको एक्सेस करवा सकता हूँ। किस तरह से, मैंने सबसे पहले आकर लिखा अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है माई ऑब्जेक्ट, सजेशन मेरे पास आ रही है, ठीक है। मैंने एंटर किया और यहां पर मैं लगाऊंगा डॉट। डॉट बेसिकली होता क्या है, डॉट को बोला जाता है, अब क्योंकि डॉट मैंने जैसे ही लगाया तो देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज और मेथड है वो उन सबका एक्सेस मुझे दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है डॉट को एक्सेसर ऑपरेटर, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज और मेथड को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सेसर ऑपरेटर, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने जैसे ही डॉट लगाया, ठीक है, माई ऑब्जेक्ट डॉट, तो यहां पर देखिए मेरे पास एस एज आ रहा है, एस नेम भी आ रहा है, और फंक्शन का नाम क्या था मेरे पास, शो। शो का फंक्शन भी यहां पर मेरे पास आ चुका है। तो मैंने अपने क्या बोला, अपने स्टेटमेंट क्या बताई अपने प्रोग्राम को कि माय ऑब्जेक्ट में जाना और उसके बाद जो शो वाला फंक्शन है जो कि उसके क्लास के थ्रू उसके पास आया है उसको क्या करवा देना, कॉल करवा देना, ठीक है। अब यहां पर देखें, यहां पर मेरे पास आ रहा है क्लास के ऊपर लिखा टू रेफरेंसेस। टू रेफरेंसेस का मतलब ये है कि देखिए दो जगह ये कॉल हुई है क्लास, मतलब उसका ऑब्जेक्ट भी। यहां देखें फर्स्ट टाइम तो यहां पर हुआ और फिर सेकंड टाइम यहां पर हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से टू रेफरेंसेस लिखा हुआ है। अब देखें इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ना तो कहीं कॉल हुई है डायरेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर जीरो रेफरेंसेस आ रहा है, ठीक है। अब उसके आगे देखें शो का जो फंक्शन है उससे ऊपर लिखा है वन रेफरेंसेस, मतलब ये जो फंक्शन है वो एक जगह कॉल हुआ है। अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूं टू टाइम्स, तो यहाँ पर देखिए थ्री रेफरेंसेस आ गया, मतलब ये जो फंक्शन है तीन जगह मैंने कॉल करवाया हुआ है, ठीक है, उसका रेफरेंस, ठीक है। अब मुझे करना है क्या कि अपनी स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, कंसोल डॉट रीड की, ताकि मेरी जो स्क्रीन है वो स्टेबल रहे, होल्ड रहे कंसोल की एप्लीकेशन की। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा, वो सबसे पहले तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उस ऑब्जेक्ट के पास जो शो वाला फंक्शन है या मेथड है उसको कॉल करवाएगा, और जैसे ही शो वाला मेथड कॉल होगा वो अपना टास्क परफॉर्म करवा देगा। और इस फंक्शन का क्या टास्क है कि वो एस नेम और एस एज में जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है आकर उसको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो यहाँ देखिए नेम भी उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दिया और उसने मुझे एज भी डिस्प्ले करवा दी। इसके अलावा भी फॉर एग्जांपल अगर कोई और प्रॉपर्टीज होती, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल क्या चाह रहा हूं, एक और मेथड मैंने कहा, सॉरी एक और मैंने कहा यहाँ पर मैसेज हो जाएगा हेलो वर्ल्ड का। इस फंक्शन का एक और टास्क मैंने परफॉर्म कर दिया, साइन कर दिया इसको कि ये एस नेम और एस एच की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के साथ साथ एक और मैसेज भी डिस्प्ले करवाएगा कंसोल में जो कि है हेलो वर्ल्ड। मैं अब इसको अगर एग्जीक्यूट करवाऊं, तो यहाँ देखें जैसे ही इस फंक्शन ने अपना टास्क परफॉर्म किया तो उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दिया, जैसे ही मैंने इस फंक्शन को इन्वोक करवाया और जैसे ही इस फंक्शन को मैंने कॉल करवाया, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन भी हो सकते थे और मल्टीपल यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी भी डिक्लेयर करवा सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर एक और मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड, और मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल शो नेम के नाम से मैंने एक, या शो मैसेज के नाम से क्या करता हूँ एक मैं मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक वॉइड और शो मैसेज। और मैंने कहा इसका क्या टास्क होगा कि मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करवा कर दे देगा गुड इवनिंग का, ठीक है। तो अब सवाल मेरा ये है कि अब इस क्लास के पास कितने मेथड हो चुके हैं, दो मेथड हो चुके हैं। तो क्या मुझे इस शो मैसेज को कॉल करवाने के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जरूरत है क्या मुझे, ठीक है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि जो उस क्लास के पास है वही इस ऑब्जेक्ट के पास भी होगा। तो जो आप देखें आपके क्लास के पास दो मेथड हो चुके हैं, एक शो का और एक शो मैसेज का।
तो वही उसके ऑब्जेक्ट के पास भी चला गया। तो मुझे इसको कॉल करवाने के लिए, शो मैसेज को मेथड को कॉल करवाने के लिए मुझे दोबारा ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इसी माई ऑब्जेक्ट को ही क्या करूंगा, यूटिलाइज करूंगा, यूज करूंगा। मैंने यहाँ पर आकर लिखा माई ओबीजे डॉट, तो देखिए मेरे पास टॉप पर ही शो मैसेज शो करवा दिया उसने। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो यहाँ देखें हेलो वर्ल्ड तक मेरे पास वो पहला वाला फंक्शन कॉल करवा कर दे रहा है, और दूसरा वाला मुझे उसने गुड इवनिंग करके दे दिया मुझे मैसेज। जैसे ही मैंने उस फंक्शन को इन्वोक करवाया, कॉल करवाया, उसने मुझे अपना टास्क परफॉर्म करके दे दिया। मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में मैं क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा सेपरेट शो करवा लेता हूँ लाइन लगाकर। अब यहाँ देखें, ठीक है, अब यहाँ देखें कि सबसे पहले माई ऑब्जेक्ट के अंदर जो शो वाला फंक्शन था वो कॉल हुआ, जो कि अली से लेके हेलो वर्ल्ड तक आ रहा है। उसके बाद देखें यहाँ पर एक अंडरलाइन आई, और अंडरलाइन के बाद मैंने कहा माई ऑब्जेक्ट को दोबारा से एक्सेस करना, और उसके बाद जो शो मैसेज वाला एक फंक्शन दोबारा से एक आ गया, उसको क्या करना, कॉल करवा देना। जैसे ही कॉल हुआ हमने टास्क परफॉर्म कर दिया, जो कि था एक गुड इवनिंग का टेक्स्ट, वो मुझे शो करवा कर दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्लासेस वगैरह बना सकते हैं, और एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अगर आप लोग एक चाह रहे हैं कि एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मतलब किस तरह से, कि मैंने यहाँ पर दोबारा अपनी क्लास को कॉल करवाया, और मैंने यहाँ पर इजाफा कर दिया माई ओबीजे 2, माई ऑब्जेक्ट 2 के नाम से बनाया, न्यू और फिर कंस्ट्रक्टर का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं जैसे ही माई ऑब्जेक्ट 2 को कॉल करवाऊंगा, तो उसके पास भी वही तमाम वही प्रॉपर्टीज होंगी जो मेरी उस पे पास थी पहले वाले ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो सेम क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना है। मैंने कोई ऑब्जेक्ट उसकी क्लास का नाम चेंज नहीं किया, सेम क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। तो इस क्लास के मैं जितने भी ऑब्जेक्ट बना लूँ, वो तमाम प्रॉपर्टीज के पास वही जाएंगी जो उस क्लास के पास एग्जिस्ट करती है। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, मल्टीपल क्लासेस वगैरह और ऑब्जेक्ट वगैरह बना सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे करना क्या है कि यहाँ पर मुझे क्लास तो बनानी है, लेकिन मैं कोई और क्लास उसकी फाइल बनाना चाह रहा हूँ। क्लास मतलब यहाँ पर देखें प्रोग्राम डॉट सी एस जो है, उसमें मेरे पास ये दोनों क्लासेस मौजूद हैं। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक अलग से ही क्या करूँ, एक उसकी फाइल बनाऊं। उससे पहले आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ अपना जो मेरे पास प्रोजेक्ट है उसका फोल्डर। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जरा सी ड्राइव में, और सी शार्प क्लासेस, और यहाँ पर आ गया क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं इसको ओपन करवाता हूँ, तो देखिए मेरे पास एक सॉल्यूशन की फाइल है, एसएलएन का मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, जिस नाम से आपका प्रोजेक्ट होगा उसी नाम से सॉल्यूशन बनकर आएगा, और जो तमाम फाइल्स वगैरह होती हैं, क्लासेस वगैरह, आपको यहाँ पर इस अंदर फोल्डर जो होता है उसके अंदर मिलती है। अभी देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही क्लास बनकर आई हुई है, प्रोग्राम डॉट सी एस की। ठीक है, सोर्स फाइल। ठीक है, मुझे क्या करनी है, एक और क्लास की एक फाइल बनानी है, एक और फाइल सी एस की बनानी है, सोर्स फाइल। तो मैं क्या करूंगा, सबसे बेच के लेना, मसला ये है बेच के फिर तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर पर मैं आता हूँ, यहाँ पर व्यू में आऊंगा, और सोल्यूशन एक्सप्लोरर, और यहाँ से आने के बाद करना क्या है कि देखें सबसे पहले तो सोल्यूशन का नाम लिखा हुआ होगा यहाँ पर, जो अभी वही सोल्यूशन जो मैंने आपको अभी फोल्डर में दिखाया, यहाँ पर ये वही सोल्यूशन का नाम है जो यहाँ पर आपके सोल्यूशन एक्सप्लोरर में लिखा हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन के बाद देखें, अब देखें एक तो सोल्यूशन और दूसरा फोल्डर है जिसके अंदर मल्टीपल फाइल है। तो देखिए ये जो फोल्डर है ये वही फोल्डर है जो कि अभी एक्सपेंड हुआ है, इसको मैं कोलैप्स भी कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये सोल्यूशन का नाम आपके, और ये आपके वही प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, यहाँ से आएगा किस तरह से, व्यू में जाए सिंपल, और सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक कर दे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल आपने क्या करना है, जो आपका जो फोल्डर का नाम है इस पर राइट क्लिक करना है, और आना है यहाँ पर ऐड। ऐड पर आने के बाद क्या करना है आपने, सिंपल क्लास पे क्लिक करना है। कोई नई क्लास ऐड करने जा रहे हैं एक अलग फाइल में, तो सिंपल राइट क्लिक करें, फोल्डर पे ऐड पर जाएं, और फिर क्लास पे सिंपल एक क्लिक कर दें। ठीक है, अब क्या होगा, क्लास उसने ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेकर आया हुआ है। यहाँ पर देखिए नेम आ रहा है आपकी क्लास का, कुछ भी नाम रख सकते हैं अपनी क्लास का। मैंने फॉर एग्जांपल अपनी क्लास का नाम रख दिया कार, सी कैपिटल कर रहा हूं मैं। ठीक है, कार। ठीक है, और कोई डॉट सी एस वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से लगाकर प्लेस कर दे देगा। ऐड पे बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास देखें एक अलग फाइल बनकर आ चुकी है कार डॉट सी एस की, और देखें मेरे पास ये इंटरनल क्लास और वही कार कार की क्लास बनकर आ गई। अब यहाँ देखें मेरे पास यहाँ पर भी आ गई कार डॉट सी एस, और अगर मैं अपना फोल्डर दिखाता हूँ तो यहाँ देखें कार डॉट सी एस के नाम से भी आ गया एक फाइल यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बना दिया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, इस नाम से मुझे नहीं बनानी थी, अगर मुझे इसको रीनेम करना है, तो कभी भी आपने डायरेक्टली यहाँ से आके रीनेम नहीं करना। तो यहाँ पर आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कार्स, या कोई और नाम रख दिया, इस तरह से रीनेम आपने कभी भी नहीं करना। आपने किस तरह से इसको रीनेम करना है, आपने यहाँ से सिंपल इसको पहले सेलेक्ट करें, F2 प्रेस करें, या तो राइट क्लिक भी कर सकते हैं, क्योंकि
उसकी शॉर्ट की क्या होती है, रीनेम की F2 होती है। राइट क्लिक करके F2 पे भी क्लिक, यहाँ पर रीनेम पे क्लिक कर सकते हैं, या तो सेलेक्ट करके भी F2 प्रेस करें तो आपके पास ये रीनेम का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, और सिंपल यहाँ से आके आप फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया क्लास का नाम माय कार। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो मुझसे परमिशन मांग रहा है कि रीनेम आपको करना है नहीं करना। ठीक है, जहां जहां वो कह रहे हैं कि भाई तमाम रेफरेंसेस जहां पर भी आपने कार का ये यूज किया होगा क्लास, वहां पर तमाम जगह क्या हो जाएगा आपके पास, ये माय कार हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं नो कर दूंगा तो रीनेम नहीं होगा, मैंने यस कर दिया तो जहां जहां मैंने यूज किया हुआ होगा कार, तो क्या हो जाएगा, वहां वहां पर मेरे पास माय कार की क्लास वो रिप्लेस कर देगा उसको। ठीक है, तो उस तरह से क्या कर सकते हैं, क्लास वगैरह बना सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करनी है। मैंने कहा माय कार के, मैंने कहा कार में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, मैंने कहा सबसे पहले तो कार का मॉडल होगा, तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया पब्लिक स्ट्रिंग, और मैंने कह दिया मॉडल। ठीक है, मॉडल, फिर मैंने कहा पब्लिक स्ट्रिंग, मैंने कह दिया उसकी प्राइस, फिर मैंने कहा पब्लिक स्ट्रिंग, मैंने कहा उसकी सीट्स, फिर इंटीजर में रख देते हैं प्राइस को, और फिर मैंने कहा पब्लिक स्ट्रिंग सीट्स, और पब्लिक स्ट्रिंग मैं करूंगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन, मतलब उसकी गियर ट्रांसमिशन क्या है, कि ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। ठीक है, अब देखिए मैंने जिस तरह से यहाँ पर क्लास बनाकर पहले प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया था, मतलब वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसके बाद उसको एक फंक्शन में इनिशियलाइज किया था, तो सेम काम यहाँ पर भी मैं करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, एक मेथड बनाने जा रहा हूँ कि पब्लिक वॉइड, और मेथड का नाम मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल कार1। कार1 मेरे मेथड का नाम है, और यहाँ पर मैंने कह दिया इसका क्या टास्क होगा, कि सबसे पहले तो ये क्या करेगा, इन तमाम वेरिएबल को इनिशियलाइज करके डिस्प्ले करवाएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया था। पहले उनको वैल्यूज असाइन किए नेम और एस एज में, और फिर उसके बाद उनको डिस्प्ले भी करवाया, तो सेम यहाँ पर भी पहले मैं मॉडल से लेकर ट्रांसमिशन तक उन सबको वैल्यूज असाइन करूंगा, उनके बाद उनको डिस्प्ले करवाऊंगा। तो मैंने कह दिया कि मॉडल में मैंने कहा यहाँ पर स्टोर करवा देना फॉर एग्जाम्पल, मैंने कह दिया फॉर्च्यूनर। फिर प्राइस में मैंने कहा यहाँ पर आकर डिस्प्ले करवा देना फॉर एग्जाम्पल 60 लाख। और सीट्स, सीट्स में मैंने कहा यहाँ पर आकर लिख देना 7 सीटर रही। और ट्रांसमिशन मैंने कह दिया इसकी ट्रांसमिशन हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, इन तमाम वेरिएबल मैंने वैल्यू तो स्टोर करवा दी, लेकिन अब इसको डिस्प्ले भी करवाना है, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा console डॉट राइट लाइन, और सबसे पहले मैंने कहा मॉडल का वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना। कंट्रोल डी से मैंने इसको किया डुप्लीकेट, फिर आ गया प्राइस, फिर कंट्रोल डी सीट्स, और लास्ट कंट्रोल डी मैंने कह दिया ट्रांसमिशन। ठीक है, अब इससे करेगा क्या वो, कि जो भी वैल्यू इन तमाम वेरिएबल में स्टोर हुई है उनको डिस्प्ले करवा देगा जब मैं फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। तो अब देखें मुझे ये वाला जो फंक्शन है कार1 का, जो कि माई कार के अंदर एग्जिस्ट करता है, माई कार की क्लास के अंदर, उसको मुझे कॉल करवाना है इस मेन के फंक्शन के अंदर, यहाँ पर, यहाँ कॉल कराना है मेन के फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लास का नाम क्या है मेरे पास, माई कार, तो माई कार का सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा मुझे, ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा माई कार, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास माई कार आ गया, माई कार। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया फॉर एग्जाम्पल टोयोटा। उसके बाद इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद न्यू का कीवर्ड, और फिर कंस्ट्रक्टर का नाम। ठीक है, अब जितनी भी प्रॉपर्टीज या मेथड इस माय कार के पास थे वो अब इस टोयोटा के पास जा चुके हैं, ऑब्जेक्ट के पास। ठीक है, तो यहां पर आकर करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने अब यहां पर आकर कह दिया फॉर एग्जांपल टोयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डॉट, और जो उसका मेथड है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम, एक्सेसर ऑपरेटर मतलब डॉट, और उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट, सॉरी उसका नाम मेथड का, जो कि है कार1। मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया कार1, और मैंने कहा इसको कॉल करवा देना, कि मैंने कहा टोयोटा के पास जो भी कार1 का मेथड है उसको सिंपल कॉल करवा देना। और अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो यहाँ देखें फॉर्च्यूनर से लेके ऑटोमेटिक तक उसने मुझे डिस्प्ले करवा के दे दिया, मॉडल से लेके ट्रांसमिशन तक। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ मैं सेपरेट कर देता हूँ उसको थोड़ा सा, यही मैं अंडरलाइन जो है कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँ तो ये मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, क्लासेस वगैरह मल्टीपल बनाकर उन मल्टीपल प्रॉपर्टीज और मल्टीपल मेथड बनाकर उसको मेन के फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल वगैरह करवा सकते हैं।